So as I mentioned, since it's early January, we have just entered a new year, and it's really cold. In North India, it's really cold. Temperatures are going down almost in the range of 5 to 12 degrees. We are there. The mornings and evenings are quite cold, and it's windy. इस टाइम जोन के अंदर बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं उनको, और जो नहीं भी हैं। सर, जैसा आपने बोला कि विंटर टाइम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और उस इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से और ज़्यादा हमने देखा कि केसेस आते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। सेकेंडली, बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, चेस्ट पेन के केसेस आते हैं और कभी कभी स्ट्रोक के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। Hi, this is Dr. Rajneesh Kapoor. Welcome to another edition of Medanta Heartbeats. We have been doing these podcasts for quite some time now, almost more than a year, and our effort has been to create and enhance the awareness amongst the society for the betterment of heart health, and how to take various steps so that we prevent heart ailments, heart disease, and we make sure that at the end of the day, after receiving tips from us, your heart remains more healthy and you enjoy your life with your proper heart health. So today, in that continuation, we are going to again talk about that. We know that we are in the winter zone, and many things change during the winter zone. And I tell you, in our OPDs, we get so many patients where their blood pressures become uncontrolled once the winter arrives. There are more heart attacks start happening, especially in the morning hours in the winters, and even the brain strokes. So all things they start rising: the heart attacks, the brain strokes, and the uncontrolled blood pressure. So we'll dedicate this today's podcast to all these points and how we can make sure that we take all the precautions, we take all the steps so that these things are not happening and your heart is secured. So इसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज हैं. डॉक्टर नीरज is a very dear friend of mine and we have been associated for more than a decade now. He's a very senior physician associated with Maruti Udyog, and Maruti Udyog is a big company. उनके अपने बहुत एम्प्लॉयज़ हैं और ये सब की उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और वहीं पे अपनी सेवाएं देते हैं. वेलकम डॉक्टर नीरज. थैंक यू डॉक्टर साहब. So as I mentioned, since it's early January, we have just entered a new year, and it's really cold. In North India, it's really cold. Temperatures are going down almost in the range of 5 to 12 degrees. We are there. The mornings and evenings are quite cold and it's windy. तो इस जोन के अंदर, इस टाइम जोन के अंदर बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं उनको, और जो नहीं भी हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिनको हार्ट प्रॉब्लम ना आए, ब्लड प्रेशर ना बढ़े. ये सब चीज़ों के डिस्कशन के लिए ही हम आज ये पॉडकास्ट को आगे बढ़ा रहे हैं. तो मैं डॉक्टर नीरज से बात करते हैं. डॉक्टर नीरज, आपको क्या लगता है, अभी आपके ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनका बीपी बढ़ जाता है सर्दी आने से, तो क्या कारण रहते हैं और लोग क्या करें? सर, जैसा आपने बोला कि विंटर टाइम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और उस इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से और ज़्यादा हमने देखा कि केसेस आते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है. सेकेंडली, बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, चेस्ट पेन के केसेस आते हैं और कभी कभी स्ट्रोक के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं. सर, आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इसके अंदर क्या चेंजेस करें कि इस तरह के इंसिडेंसेस को हम कम कर सकें, नंबर 1, और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए ताकि चाहे समर हो चाहे विंटर हो, उनका हार्ट अच्छे से काम करता रहे? देखो, पहले हम इसके कारण की जांच करते हैं. जो केस बढ़ते हैं हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर के या ब्रेन स्ट्रोक के, तो उसके पीछे जो कारण है, विंटर्स में क्या होता है, बहुत जल्दी
अंधेरा होने लगता है, ठंड है बाहर, मॉर्निंग वॉक्स लोगों की छूट जाती हैं, इवनिंग्स में भी वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो घर पे बैठ के कोजी एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। तो एक तो इनएक्टिविटी हो गया। बिल्कुल सर। So now they are moving from a active lifestyle to a sedentary lifestyle, more specifically in winters. So that is one। और दूसरा, जब वो घर के अंदर बैठे हैं क्योंकि ठंड है, तो उनका चाय कॉफ़ी का सेवन बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी गर्म चीज़ें या तली हुई चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि उसमें उनको वार्मथ लगती है, जैसे पकौड़ा हो गया या कुछ ऐसे सेवन बढ़ जाते हैं, तो उसमें सॉल्ट इंटेक बढ़ जाता है। सो लिक्विड इंटेक बढ़ जाता है, सॉल्ट इंटेक बढ़ जाता है, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया और वॉक्स बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है अलॉन्ग विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनके हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसके पीछे कारण है विंटर्स में सारे ये इंसिडेंसेस क्यों बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको एक तरह लाइफस्टाइल में लाएं और लोग ये जानें भी, अगर हम इसको रिवर्स कर सकें तो ये इंसिडेंसेस अपने आप कॉमन हो जाएं, अपने आप बंद होने लग जाएंगे। सो माने जैसे वो मॉर्निंग में थोड़ा लेट वॉक पे निकल जाएं, अपने आप को पूरा हेड गियर्स और ग्लव्स पहन के अच्छे से कवर करके निकलें, पर हाफ एन आवर का वॉक करें। और उसके अलावा जो ये चाय कॉफ़ी का सेवन है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। अगर आपको चाय लेना है तो आधा कप ही लें, और सॉल्ट इंटेक का खासकर ख्याल रखें। घर बैठे हुए बहुत एक्सेसिव सॉल्टी स्नैक्स ना लें। और जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको दवा चल रही है, वो अपनी दवा को बिल्कुल मिस नहीं करें। तो अगर 3-4 चीज़ें करने से मुझे लगता है ये चीज़ें अपने आप काफ़ी कंट्रोल लोग अपने आप से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी 3 बातें बोली। नंबर 1 लाइफस्टाइल चेंज करना है जिसमें अपने आप को एक्टिव रखना है। नंबर 2 एक्टिविटी के अलावा डाइट पे कंट्रोल करना है, क्योंकि विंटर के अंदर हम लोग वैसे ही ज़्यादातर अपने रूम्स के अंदर रहते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसकी कंजम्पशन लिमिटेड। और उसके साथ साथ जो पैकेज फूड हम कंज्यूम करते हैं, चाहे बिस्किट्स हुआ चाहे नमकीन्स हुए, उनको नहीं करना। बिल्कुल। तो इन दोनों बातों पे अगर हम लोग फोकस करें तो जो मैंने बताया कि हमारी ओपीडी के अंदर इंक्रीज इंसिडेंस हो रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ चिंतन वाली है वो ये है भी, हमारी ओपीडी में जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं पहले से, जिनका बीपी कंट्रोल चल रहा था अक्टूबर तक, नवंबर में एंटर होते ही वो यूजुअली आने लगते हैं, उनका बीपी 170, 180, 190 दिखने लगता है। जो 2 दवाएं ले रही थे वो सडनली पता चलता है इनएडिक्वेट हैं बीपी के लिए, तो हमें दवाएं बढ़ाना पड़ता है। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। तो उनकी दवाएं बढ़ती हैं बीपी कंट्रोल के लिए, तो उससे पेशेंट शर्क नहीं करें, उससे ये ना सोचें भी ये क्यों बढ़ गया, मैं तो नहीं लूँगा। अपना कंप्लायंस रखें बढ़ती हुई दवाओं से, तब बीपी ठीक रहता है। एक और चिंतन का विषय डॉक्टर नीरज, इन्हीं मंथ्स में जब विंटर्स होता है तो पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है। सो क्या आपको लगता है भी इसमें पोल्यूशन का भी रोल है? डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं पोल्यूशन इज़ इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ ऑल ऑफ अस। और उसके अंदर जैसा कि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी और कार्डियक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो ये भी अपने आप में कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ सेकेंडरी टू रेस्पिरेटरी डिजीज़। बिल्कुल सही है डॉक्टर नीरज का ये स्टेटमेंट, बहुत बड़ा फैक्ट है। और आजकल हमारे पास इतनी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में बढ़ता है, खासकर नवंबर से जनवरी तक 3 महीना माने, तो इससे ना तो सिर्फ रेस्पिरेटरी एलर्जीज और इन्फेक्शन बढ़ते हैं, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इससे लोगों का डायबिटीज़ भी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है। तो ये सब चीज़ों के कारण भी हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक्स बढ़ते हैं। तो यस, आई एग्री भी पोल्यूशन से बचत करना है, बट वहीं हम ये भी चाहते हैं भी आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करें और थोड़ा अपने आप को वॉक में रखें या मोबिलाइज रखें। तो एक मास्क पहन के निकलें, मास्क का यूज़ करें, खासकर इन 3 महीनों के अंदर। हमने सारा बात किया, जैसे डॉक्टर नीरज, एक चीज़ है डायबिटीज़।
सो घर में जो बैठे रहेंगे सर्दी के अंदर वो या तो डायबिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेवन सिर्फ सॉल्टी स्नैक्स का ही नहीं होगा, मिठाई का भी होगा। तो वो मीठा ज़्यादा खाने से या सॉल्टी स्नैक्स खाने से आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगा, आपका बीपी अनकंट्रोल्ड होगा, और यही चीज़ें इनडायरेक्टली आपके हार्ट डिजीज़ और ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ाएंगी। बिल्कुल ठीक सर, जो आपने ये बात बोली, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डाइट द हैबिट्स आर गोइंग टू लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट डिजीज, ऑफ डायबिटीज़, एंड डायबिटीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। तो बहुत सिंपल एक हम टिप देते हैं सबको, अपने ऑडियंस को। एक तो जैसे ही विंटर सेट इन होता है अपना ब्लड प्रेशर चेक करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। सो अगर आप अपना बीपी ही चेक नहीं करेंगे देन यू आर नॉट गोइंग टू नो व्हाट ब्लड प्रेशर यू आर हैविंग। यू मे बी हैविंग बीपी ऑफ 160 170 बट आपको पता ही नहीं है। सो अगर आप बीपी चेक करेंगे 15 दिन बाद तब भी आप बहुत सारा पीरियड मिस कर जाएंगे। स्पेसिफिकली इन 3-4 महीने में अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करें। अगर वो ज़्यादा पाया जाता है अपने क्लोज फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें। बीपी का आपको दवा का ज़रूरत हो सकता है, अगर आप पहले से लेते हैं उसमें बीपी का दवा ऐड करने का ज़रूरत हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमने डिस्कस किए। एक और चिंता का विषय है डॉक्टर धीरज, जो आजकल भी खबर में आया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एक बेटे थे जो इन द 4th डेकेड 40-42 साल की उम्र थी, यूएस में उनका भी सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड ही इज़ वन ऑफ सच केसेस। और इस तरह के और भी कई सारे केसेस सडन कार्डियक अरेस्ट के, सडन कार्डियक डेथ के रिपोर्ट हो रहे हैं। यस, सो दिस इज quite a concern that of late we are having so many sudden cardiac deaths affecting the youth। जो 40 साल का यूथ है अभी, उसको प्रोडक्टिविटी देखिए, उसका लाइफ का सारा पड़ा है, and then we lose that guy because of sudden cardiac death। so ये इसके बारे में भी थोड़ा सा हम एंड में डिस्कशन करते हैं और ये सोचें भी कैसे ये चीज़ें हमारे यूथ के लिए डैमेजिंग ना हो, हम उनका लॉस ना हो। क्या करे सोसाइटी, क्या करे पब्लिक एट लार्ज, ताकि ये चीज़ें हम इसका इंसिडेंस कम से कम कर पाएँ। जैसा आपने बोला कि सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए चीज़ें ना हो, 40s के अंदर है, तो एक तो लाइफस्टाइल के हमने बारे में बात की, हमें उस पर फोकस करना है। एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि बीपी हमें बराबर अपना चेक कराना है, क्योंकि सडनली बीपी बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि बीपी बढ़ गया है। नंबर 3, एक और बीपी से रिलेटेड डॉक्टर साहब ने बात बोली कि विंटर के टाइम में बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर हम चेक नहीं कराएंगे तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा और वो साइलेंट होगा, पता नहीं चलेगा। तो हमें मेडिसिन ऐड करनी है, चेकिंग करनी है। डॉक्टर कपूर, आपका क्या कहना है, कितनी फ्रीक्वेंटली एक हाइपरटेंसिव को अपना बीपी चेक कराना चाहिए, और नॉर्मल जिनका ब्लड प्रेशर है विंटर के टाइम में कितनी फ्रीक्वेंटली वो चेक कराना चाहिए? देखो, नॉर्मली जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं और बीपी की दवा लेते हैं उनको वीक में 2 बार बीपी चेक कराना चाहिए। बट विंटर्स में आके मैं बोलता हूँ भी ईदर एवरी डे और ऑल्टरनेट डे पे अपना एक बार बीपी रीडिंग लें, बिकॉज देर आर हाई चांसेस दैट योर बीपी विल बी अनकंट्रोल्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूजुअल स्टफ विच affects many individuals in the society। so ये तो हुआ बीपी चेक करने का। हम वो बात कर रहे थे सडन कार्डियक अरेस्ट वाली, उसके लिए मैं एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहता हूँ सोसाइटी को। हम उसको कैसे बचा सकते हैं, जो एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। so उसको बचाने का एक ही तरीका है। पहले हम सोचते थे भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है हार्ट के वो 50 के बाद ही शुरू करें, क्योंकि नॉर्मली 50 के बाद ही हार्ट अटैक मार करता है। बट अब ये सिचुएशन नहीं है। अब 30-35 के बाद सबको अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। एंड हाउ वी कैन पिक द डिजीज़ अर्लियर, दिस इज़ द ओनली मेथड। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट में उनको पता चलता है उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, उनका शुगर बहुत हाई है, और उनका एक सिंपल इको या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं हम लोग, स्ट्रेस टेस्ट, उसमें कोई ख़राबी मिलती है तो हमें एंजियोग्राफी की तरफ जाना है। और या
जिनके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जिनके फैमिली में हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, उनके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज़ हुआ है, उनको डायबिटीज़ है उस व्यक्ति को जो जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट करने जा रहे हैं, या हाइपरटेंशन है या स्मोक करते हैं, उनको अपना 35 साल की उम्र के बाद एक सीटी कोरोनरी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। बहुत इजी स्कैनिंग टेस्ट है, सीटी बेस्ड है। उससे आपकी अपनी धमनियों के अंदर पता चल जाएगा कि कुछ ब्लॉकेज बन रहा है या नहीं। अगर आपकी धमनी में मान लीजिए 50% ब्लॉकेज मिलता है तो देन यू बिकम वल्नरेबल फॉर सडन इवेंट्स। अगर आपकी धमनियाँ क्लीन है देन यू आर ओके। अगर क्लीन है तो 5 साल की गारंटी है। अगर आपका धमनी नॉर्मल है 5 साल के बाद अपना टेस्ट रिपीट करें। बट अगर आपकी धमनियों में 40-50% के ब्लॉकेज पाए जाते हैं तो उसको 2 या 3 साल में रिपीट टेस्ट से ज़रूर देखें क्या वो प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। और उस ब्लॉकेज को रिग्रेस करने के लिए कुछ दवाएं हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल्स हैं, स्टैटिन्स हैं, वो लेने चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द मेन वे, मेन मेथड, मेन ऑप्शन बाय विच our society can be diagnosed as a patient, whether the patient is having some predisposing factors or predisposing plaques or blockages in the arteries which make them vulnerable for sudden events. अगर ये नहीं पता चलेगा तो आपको अपना रिस्क ही नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ आई थिंक, आप भी इस बारे में एक टिप्पणी करना चाहोगे? तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पे फोकस होना चाहिए, और नंबर 2 जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं उनके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर हो गया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी रिस्क फैक्टर हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको पहले अपना हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ आपने बता दिया, स्मोकर्स जो हैं उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है हार्ट के लिए। फैमिली हिस्ट्री में एक स्पेसिफिक चीज़ बोलना चाहूँगा। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके पेरेंट्स को या आपके मैटरनल या पैटर्नल अंकल्स को हार्ट अटैक आया है जो 70 इयर्स के बाद आया है तो भी आप रिस्क पे हो। बट अगर वो हार्ट अटैक उनको जल्दी आया है, 50 की उम्र के आसपास आया है, तो आपका रिस्क बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। देन यू आर एट अ वेरी हाई एस्केलेटेड रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़। तब तो बहुत ज़रूरी है आप इससे बिल्कुल भागे नहीं। अपना स्क्रीनिंग टेस्ट और सीटी कोरोनरी एंजियो, आई वुड से द थ्रेशोल्ड ऑफ सीटी कोरोनरी एंजियो इन सच सबसेट्स वुड बी मच लोअर, और उसको कराएं और अपनी हार्ट हेल्थ को बार बार देखते रहें। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट योर हार्ट इज़ वर्किंग फाइन एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो इट कंटिन्यूज टू वर्क फाइन। अदरवाइज आपको अपने रिस्क का जांच होगा तो आप जो उस रिस्क को कर्ब करने के लिए या उस रिस्क को सुप्रेस करने के स्टेप्स हैं वो भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ले पाओगे अगर आपको पता है अंदर आपके क्या चल रहा है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपना रिस्क कम करना है, और इस रिस्क को कम करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने हैं, और नंबर 3 जो दवाइयाँ हैं उनको कंटिन्यू करना है। हो सकता है विंटर के अंदर ख़ास तौर से रिस्क बढ़ जाता है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए और एक्स्ट्रा दवाई लेनी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर नीरज से ये सारा डिस्कशन हुआ। सो इसमें मेजरली हमने डिस्कस किया भी विंटर्स आपकी अच्छे से गुजरें, सर्दी को आप इंजॉय करिए। एट टाइम्स इट फील्स लाइक दैट यू नो दिस वेरिएशन इन वेदर इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक मोनोटनी टाइप वेदर में रहने से अच्छा है हम दोनों को एंजॉय करते हैं। तो हम चाहते हैं आप विंटर्स को एंजॉय करिए, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सेफगार्ड्स लेते हुए वो बेस्ट होगा आपके लिए। अपनी हार्ट हेल्थ को बरकरार रखें। जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अपने आप को ज़्यादा जल्दी चेकअप कराइए, बीपी अपना चेक करते रहें, दवाएं रेगुलर लें। अगर दवाओं में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो बढ़ी हुई दवाएं भी लें, कंप्लाइंट रहें मेडिसिन्स को, और डाइट में सॉल्ट और मीठी चीज़ों दोनों का सेवन कम रखें। ये कुछ टिप्स हैं जिसको लेते हुए आप विंटर्स को पूरा एंजॉय कर सकते हैं और आपका हार्ट भी हेल्दी रहे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा विश है, और यही हमारी आप सब लोगों को एक तरह से हम ये आपको बताना चाहते हैं भी इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप ये सब करिए सो दैट यू रिमेन हार्ट हेल्दी एंड कीप एंजॉइंग विंटर।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी न्यू ईयर टिप्स दी हैं और अगर हम सब उन टिप्स को फॉलो करें तो वी रिड्यूस अवर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो stroke disease. Thank you so much, doctor. That is all from us for this podcast. We'll come back again with a new series next month. Thank you. Thank you.